لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک نہایت اہم اور گہرا سوال دریافت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ شروع میں صرف اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بغیر ابتدا اور بغیر انتہا کے، ہر چیز سے بے نیاز، ہر صفت میں کامل۔ نہ قلم نے کچھ لکھا تھا، نہ وقت نے پر پھیلائے تھے، نہ عرش قائم ہوا تھا، نہ پہلے کا کوئی تصور تھا، صرف اللہ ہی موجود تھا۔ مگر اس کی لامحدود ذات میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک حقیقت جو صرف وہی جانتا تھا۔ ایک مقدس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ یہ روایت ابتدائی اسلامی علماء اور تصوف کے مشائخ سے منقول ہے، اور قرآن میں سورہ الذاریات کی آیت 56 سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وَمَا خَلَقَتِ الْجِنُّ وَالْأَنسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن کی سب سے مشہور آیتوں میں سے ایک ہے جو مخلوق کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہے۔ علماء جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کو پہچانے، کیونکہ کوئی اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اسے پہچان نہ لے۔ اللہ نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی کہ اسے کسی چیز کی کمی تھی، نہ اس نے آسمان و زمین اس لیے بنایا کہ اسے صحبت کی ضرورت تھی۔ وہ الغنی یعنی بے نیاز ہے، بلکہ تخلیق اس کی لا انتہا صفات اور ناموں کا ظہور تھا، ایک ایسا منظرنامہ جہاں اس کی صفات کا عکس ظاہر ہو اور پہچانا جائے۔ یہ کائنات کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ایک مظہر ہے، ایک ایسی رحمت جو وجود میں آئی تاکہ کثرت کے پردے میں اس کی وحدانیت ظاہر ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر اعلان، ہمارے تمام ویڈیوز اردو اور انگریزی زبان میں یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں، آپ انہیں ہماری پلے لسٹ میں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ چلیں اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تمام مخلوق میں وہ پہاڑ جو آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، وہ سمندر جو اپنی گہرائیوں میں راز چھپائے ہوئے ہیں، وہ ستارے جو آسمان کی زینت ہیں، ایک سب سے پاکیزہ نور بھی موجود تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ امام بہقی نے دلائل النبو میں روایت کیا ہے، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا، اور مسند احمدی حدیث 17163 میں ہے، میں اللہ کے پاس اس وقت بھی نبی لکھا جا چکا تھا جب آدم ابھی مٹی میں تھے، اور یہ فرمایا گیا، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات اور عرش و فرش کو پیدا نہ کرتا۔ یہ بات اور نوری حقیقت صوفی علماء، حدیث کے ماہرین اور شارحین نے اپنی کتابوں میں واضح فرمائی ہے۔ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے، فرشتوں اور عرش سے پہلے، اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ نور ازل سے موجود تھا اور کائنات کے تمام نظام اور تقدیروں کے جاری ہونے کا شاہد تھا۔ یہ نور ہی وجہ اور راز تخلیق تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ الانبیاء آیت 107 میں، اور اے محمد ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امام قرطبی جیسے مفسرین اور امام بصیری جیسے صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صرف حضور کی دنیاوی رسالت کا بیان نہیں بلکہ ان کی ازلی اور کائناتی حقیقت کا بھی اعلان ہے۔ اگر اللہ نے پہچانے جانے کے لیے تخلیق کی تو لازم ہے کہ کوئی ایسا وجود ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچان سکے، جو اس کی صفات کا سب سے مکمل آئینہ ہو، اور وہ ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ آپ کی سیرت، افعال، اقوال اور پورا وجود اللہ کی صفات کا کامل مظہر ہے۔ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، سورہ القلم آیت 4 میں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا دل سب سے زیادہ کشادہ، آپ کی روح سب سے زیادہ نورانی، اور آپ کی رحمت سب سے مکمل ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہم اللہ کی پہلی تخلیق کائنات کے 7 دروازے اور اللہ کی تخلیق سے پہلے اس کی حالت پر بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान में बारहा जिक्र फरमाया है। हम यहाँ चंद आयात पेश कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेशुमार आयात नाजिल फरमाई है। सूरह अन-निसा आयत 80। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है और उनकी पैरवी अल्लाह की इबादत है। सूरह अल-अहज़ाब आयत 36। किसी मोमिन मर्द और औरत को हक नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो वो उसमें अपनी राय रखें। सूरह अल-अहज़ाब आयत 21। बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है। सूरह अल-फतह आयत 10। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठ करते हैं, दर हकीकत वो अल्लाह से बैठ करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत दरअसल अल्लाह से बैत है। और सही बुखारी हदीस नंबर 3340 में आता है, मैं अपने रब के सामने सजदे में गिर जाऊंगा, फिर मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, मांगे दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी। प्यारे नाजरीन, ये तो महज एक झलक है। अगर वक्त और तहकीक की जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेशुमार आयात और अहादीस हमें मिल जाएंगी। चलें अब आखिर में जल्दी से ये देखते हैं कि पिछले अंबिया कराम ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी नाम लेकर, सूरह अस-सफ आयत 6। और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, अपने से पहले की तौरात की तस्दीक करने वाला हूं और एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूं जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा। हम जानते हैं कि अहमद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक नाम है जिसका मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान में जिक्र है कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की बुनियादें उठाएं तो दुआ की। सूरह अल-बकरा आयत 129। ए हमारे रब, उनमें से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयात तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। बेशक तू ही जबरदस्त और हिकमत वाला है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ थी और आप हजरत इस्माइल की नस्ल से मबऊस हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 173। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुभ मेराज में मैं मूसा के पास से गुजरा, वो रो रहे थे। उनसे पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? कहा, ए रब, ये वो नौजवान है जो मेरे बाद भेजा गया और उसकी उम्मत में जन्नत में जाने वाले मेरी उम्मत से ज्यादा होंगे। इससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत का इतराफ किया। शुभ मेराज का वाकया, सही मुस्लिम हदीस 259। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे दूसरे आसमान पर ले जाया गया जहां ईसा और यहया से मुलाकात हुई। तीसरे पर यूसुफ, चौथे पर इदरीस, पांचवें पर हारून, छठे पर मूसा और सातवें पर इब्राहिम। हर नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम और इज्जत अफजाई से खुश आमदीद कहा। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, हर नबी ने कहा, खुश आमदीद ए नेक नबी और नेक भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा। तसव्वुफ और अहले मार्फत की रिवायत। कदीम तसव्वुफ की किताबों जैसे दलाइल अन-नबू और कश्फुल खफा में ये रिवायत मौजूद है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पहाड़ या कोहे सिनाई पर गए और आलम गैब में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखी तो हिबत और जलाल से बेहोश हो गए और जब होश में आए तो अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमा दे। ये कौल सूफियाना अदब में मशहूर है जो सईदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे की अजमत की अलामत है। हजरत मूसा का तौर पहाड़ पर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना, सूरह अल आराफ की आयत नंबर 143। और जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकर्ररा वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे कलाम फरमाया तो अर्ज किया, ए मेरे रब, अपना दीदार दिखा दे कि मैं तुझे देख सकूं। फरमाया, तो मुझे हरगिज ना देख सकेगा मगर पहाड़ की तरफ देख। अगर वो अपनी जगह पर कायम रहा तो फिर तो मुझे देख सकेगा। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने जलवे का ज़हूर फरमाया तो
तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, तो पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूं। मेरे अजीज नाजरीन, सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस आयत को जुमलों की तर्जुमा शुदा शक्ल में न देखें, बल्कि इसके अल्फाज को लफ्ज बह लफ्ज देखें। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो तसव्वुफ और अहले मार्फत का इल्म है, जो सूफी बुजुर्गों और औलिया कराम ने इस आयत का राज खोला है। बहुत से तरीकत और तसव्वुफ के उलमा ने इस आयत की ये तशरीह की है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखने की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज लन इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है हरगिज नहीं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला जिस बात का एक बार फैसला फरमा दे उसमें कोई अगर मगर या बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह कायम रहता है तो फिर तुम मुझे देख सकोगे। अजीज नाजरीन, हम सब जानते हैं कि पहाड़ इस जलवे को बर्दाश्त न कर सका और इसी आयत में ये वाकया बयान भी हुआ है। अब अजीज नाजरीन, यहाँ एक इंतहाई हैरान कुन और गौर तलब बात है कि पहाड़ के रेजा रेजा होने से पहले आयत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब जाहिर किया उसकी शान या तजाली अल्लाह ने। मैं फिर दोहराता हूं, जब जाहिर किया उसकी शान या तजाली अल्लाह ने, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो कहा, मैं तौबा करता हूं और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुके कि मूसा अलैहिस्सलाम हरगिज अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते, तो फिर किसका जलवा पहाड़ पर जाहिर किया गया? और जब मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और कलामुल्लाह वाले थे और पहले से पक्के मोहिद और मोमिन थे, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया देखा कि जिसे देखकर उन्होंने फिर से ईमान लाने और तौबा करने का ऐलान किया। क्या यह हैरत अंगेज बात नहीं कि इतने बड़े नबी होने के बावजूद और अल्लाह से बराह रास्त कलाम करने के बावजूद इस मौके पर कुछ ऐसा देखा कि खुद कहने लगे कि मैं तौबा करता हूं और सबसे पहला मोमिन हूं। जी हां अजीज नाजरीन, अगर आपने सही अंदाजा लगाया तो आपने बिल्कुल ठीक समझा, वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। बाज तारीखदान और औलिया कराम फरमाते हैं कि ये तजल्ली दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। और बाज ये भी बयान करते हैं कि ये जलवा उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम 1,24,000 अंबिया कराम और मोमिनीन की रूहों का मंजर था जो कोहे तौर पर जाहिर किया गया। अब आइए हम कुछ ऐसी आयात देखते हैं जो बताती हैं कि अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में मुमकिन नहीं। सूरह अल-इनआम 6:103 आंखें उसे पा नहीं सकती और वो सब आंखों को पा लेता है और वही बारीक बीन और सबसे बाखबर है। यानी दुनिया में कोई मखलूक अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सकती, अलबत्ता अल्लाह ताला सब कुछ देखता है। सूरह अल-क़ियामा 75:22-23 उस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब को देखते होंगे। यानी आखिरत में अल्लाह ताला नेकुकार मोमिनीन को अपना दीदार नसीब फरमाएगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की तलब महज शौक और मोहब्बत की बिना पर थी, ना कि किसी शक या आजमाइश की वजह से। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहम अल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर कबीर में फरमाया, दुनिया में अल्लाह का दीदार ना हो सकने की वजह यह है कि मखलूक उसकी जलालत और अजमत का तहम्मुल नहीं कर सकती, ना ये कि अल्लाह को देखा नहीं जा सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 7432। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वें रात के चांद की तरफ देखा और फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे उस चांद को देख रहे हो, तुम्हें देखने में कोई दिक्कत ना होगी। यानी अल्लाह ताला का दीदार मोमिनीन के लिए आखिरत में खास इनाम होगा, दुनिया में नहीं। कोई भी मोतबर आलम या मुहद्दिस ये दावा नहीं करता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अल्लाह ताला का दीदार किया। तमाम मोतबर तफासीर और सही अहादीस इस बात की वजाहत करती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दरखास्त की थी और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा पहाड़ के वाक़े के जरिए फरमाया। दुनिया में अल्लाह का दीदार मखलूक की ताकत से बाहर है। आखिरत में जन्नत के मोमिनीन के लिए सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार होगा। अंबिया का मीसाक, तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार किया। कुरान मजीद की सूरह आले इमरान आयत 81 में इरशाद होता है, और
वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने अंबिया से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तुम्हारी मौजूदा किताबों की तस्दीक करे तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना। मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्न कसीर और इमाम कुर्तुबी के मुताबिक इस आयत का मिस्दाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर नबी से वादा लिया गया कि अगर उनके जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो वो उन पर ईमान लाते और उनकी मदद करते। यानी ये सारी कायनात, आसमान, जमीन, फरिश्ते, जिन्नात और इंसान एक ऐसा स्टेज है जहां वजूद का ड्रामा जारी है। हर लम्हा, हर जर्रा, हर सांस अल्लाह की किताब तख्लीक की एक आयत है और इस पूरी कहानी का मरकजी किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि हजरत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो जन्नत को जीनत ना दी जाती और ना जहन्नम को जलाया जाता। यानी तमाम हकीकतें, जन्नत, दोज़ख, क़यामत, अंबिया, किताबें, सबका ताल्लुक और मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक से जुड़ता है। हत्ता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के वालिद हैं, उन्हें भी बख्शिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिली, जैसा कि अहादीस में है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई तो उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के वास्ते मग़फ़िरत मांगता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना जबकि मैंने अभी उन्हें पैदा भी नहीं किया? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया और मुझ में अपनी रूह फूंकी तो मैंने अपना सर उठाया और अर्श के सुतूनों पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं जान गया कि तूने अपने नाम के साथ उसी का नाम लिखा है जो तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब होगा। ये रिवायत दर्ज है अल हाकिम किल मुस्तदरक में हदीस नंबर 4228, इमाम बेहकी की दलाइल अन्नबू जिल्द 5 सफ़ा 483 और अबू नईम अस्फहानी की हली अल औलिया में आज भी तख्लीक का अमल जारी है। सितारे पैदा होते हैं, कहकशाएं बिखरती हैं, दिल जागते हैं और रूहें जाती हैं। ये सारा सिलसिला उसी इब्तिदाई मकसद के तहत है, अल्लाह को उसकी निशानियों के जरिए पहचानना। और सबसे रोशन निशानी, सबसे वाज़ेह अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनकी तालीमात, उनका अखलाक, उनकी मोहब्बत आज भी इस भूले हुए जहान में रास्ते रोशन करती है। हर वो दिल जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, चाहे वो गम में हो या शुक्र में, आखिरकार उस रास्ते को पा लेता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर तक जाता है। खुलासा ये, अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपने अस्मा व सिफात के इजहार के लिए मोहब्बत में तख्लीक फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पहली तख्लीक और तख्लीक का मकसद है। उन्हीं के जरिए अल्लाह की मार्फत सबसे कामिल तरीके से जाहिर हुई और पहुंचाई गई। कायनात अल्लाह की पहचान का मजहर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आईना है। उन्हें पहचानने में अल्लाह की पहचान है, उन्हें चाहने में इंसान अपनी तख्लीक का मकसद पाता है। जैसा कि इमाम बुसीरी रहमहुल्लाह ने कसीदा बुर्दा शरीफ में फरमाया, सारी कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बदौलत वजूद में आई और लौह व कलम उनके जिक्र के लिए पैदा किए गए। बस ए अजीज दोस्तों, जो सितारे तुम देखते हो, जो सांस तुम लेते हो, जो हकीकत तुम सीखते हो, वो सब उसी एक इलाहिया इरादे की बाज़गश्त है जो एक छुपी हुई खजाने की सूरत में था और नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जाहिर हुआ। और उनसे मोहब्बत करना दरअसल उस अबदी मकसद में शामिल होना है जिसके लिए ये सारी कायनात बनाई गई। शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको हमारा ये मवाद अच्छा लगा हो और आप फायदा महसूस करते हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब उस इल्म के सफर में साथ चलते रहें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।